اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ادھر میرے BA کے پیپرز ختم ہوئے، ادھر بڑی آپا کے فون پر فون آنا شروع ہو گئے۔ وہ مجھے کچھ دن کے لیے اپنے پاس بلانا چاہ رہی تھی۔ گھر میں بیٹھ کر وہ خود بھی بوریت کا شکار تھی اور چھوٹے بھانجے بھانجیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن امی کچھ متذبذب تھی۔ وہ آج کے دور میں بھی نانی جی کے اصولوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جن کے مطابق بیاہتا بہنوں کے گھر غیر شادی شدہ بہن کا جا کر رہنا مناسب بات نہیں۔ پہلے تو امی آپا کے فون آنے پر ٹال مٹول کرتی رہی، پھر آخر وجہ بتا ہی ڈالی تو آپا سن کر حد درجے خفا ہوئی۔ کمال ہے امی، کیسی باتیں کرتی ہیں، میں نور العین کی بہن ہوں، کوئی غیر تو نہیں۔ اگر بھرے سسرال میں رہتی ہوں تب بھی آپ کا اعتراض بنتا تھا، مگر اب ایسی بات کے کہہ کر آپ نے میرا دل بہت دکھایا ہے۔ سرفراز تو خود نور کو چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اعتبار ہی نہیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ لا حول ولا، سوچ سمجھ کر بولا کرو حور، خدا نہ خواستہ مجھے کسی قسم کی کوئی بے اعتباری کیوں ہونے لگی، میں تو بس ویسے ہی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے امی؟ بس میں اس ویکنڈ پر سرفراز کو بھیج رہی ہوں، وہ خود آ کر نور العین کو لے جائیں گے۔ سچ کہوں، جب سے بچوں کو پتا چلا ہے کہ نور خالہ آنے والی ہیں، انہوں نے پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کر دیا ہے کہ خالہ کب پہنچ رہی ہیں۔ رشتوں کو ترسے ہوئے ہیں میرے بچے، دھدیال میں تو کوئی ان کے لاڈ اٹھانے والا کوئی ہے نہیں، خالہ ماموں پر ہی ان کی جان اٹکی ہوئی ہے۔ نور یہاں آئے گی تو بچوں کا دل بہل جائے گا، ورنہ بچوں کی اپنی چھٹیوں میں تو ابھی ایک عرصہ پڑا ہے۔ مجھے تو جانے کب آپ کے پاس آنے کا موقع ملے۔ میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آپ کی نور خالہ کو بہت سے دنوں کے لیے آپ کے پاس بلاؤں گی، اگر آپ خود سوچیں۔ بڑی آپا حسب عادت نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سرفراز کو بھیج دینا، میں نور سے کہتی ہوں تیاری کر لے۔ امی بالآخر مان گئی، شاید نواسے نواسیوں کی محبت غالب آ گئی، ورنہ امی جیسی اصول پسند خاتون کے لیے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ناممکن سی بات تھی۔ بیچاری حور آپا بھی اپنی جگہ سچی تھی۔ سرفراز بھائی اپنے والدین کی آخری اولاد تھے۔ بڑے بہن بھائی ان کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی بال بچوں والے ہو چکے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو والدین طبی عمر گزار کر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ یوں اگر حور آپا کی خوش قسمتی سے سسرال کے جھنجٹ سے پالا نہ پڑا، وہیں بچے دادا دادی چچا اور پھوپھی کی محبت سے محروم رہے۔ لیکن آپا ہمارے گھر کی پہلی اولاد تھی، سو ان کے بچوں کی ننیحال میں اضافی پروٹوکول ملتا تھا۔ میرے علاوہ امی ابا اور چوتھے بھائی بھی بچوں پر جان چھڑکتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی اور فیورٹ خالہ تھی، جو ہر الٹی سیدھی فرمائش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ جتنی بے چینی سے بچوں کو میری آمد کا انتظار تھا، امی جی کی اجازت ملنے کا مرحلہ طے ہوا تو میں نے جھٹپٹ تیاری کر لی، اور 2 دن بعد سرفراز بھائی آئے اور مجھے لے گئے۔ جو مجھے لینے آ گئے، امی نے مجھے ڈھیروں نصیحتوں سمیت ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آپا کے گھر میرا پرتپاک استقبال ہوا، بچے میری ٹانگوں سے لپٹ گئے، کھانے کی میز پر انواع اقسام کے لوازمات سجا کر مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں بہت دنوں کے لیے رہنے آئی ہوں آپا، یہ تکلف نہیں چلے گا، میں نے انہیں جتا دیا۔ اچھا چلو ابھی تو کھاؤ، پھر سے کچن کا چارج میں تمہارے ہی حوالے کرنا ہے۔ تمہارے بھانجے بھانجوں کو جو الا والا چاہیے ہوتا ہے وہ مجھ سے اچھا تم بنا سکتی ہو۔ ان کی مراد چائنیز کھانوں کی طرف تھی، جو بچے بہت شوق سے کھاتے تھے، اور آپا بلا شبہ روایتی اور دیسی کھانوں کی ماہر تھی، مگر چائنیز اور اٹیلین بنانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور پھر میں خود بھی سوچ کر آئی تھی کہ آپا کو کچھ دن کے لیے ریسٹ دینا ہے، کہ اوپر تلے کے بچوں نے ان کو بالکل ہی گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ سو اگلے دن ہی میں نے بخوشی کچن کا چارج سنبھال لیا۔ اگلے دن جب میں نے آپا کی فرمائش پر بطور خاص امی والے طریقے سے شملہ مرچ اور قیمہ بنا رہی تھی تو آپا نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ میں چولہے کی آنچ ہلکی کر کے باہر نکل آئی۔ جی آپا کہیے، میں نے پوچھا، اور ٹھٹک کر رہ گئی۔ آپا کے ساتھ ایک 30-32 سالہ لڑکی، یا شاید عورت کہنا مناسب ہوگا، کپڑوں کا گٹھڑ کھولے بیٹھی تھی۔ میں سمجھ گئی وہ زمرد ہوگی، میں نے آپا کی زبانی اس کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ کڑھائیوں والے سیٹ اور بیڈ شیٹ سیٹ وغیرہ بیچنے کے لیے کسی قریبی قصبے سے آتی تھی۔ پچھلی بار آپا ہمارے پاس رہنے آئی تھی تو نہایت دیدہ زیب کڑھائی والے 2 سوٹ جو مجھے تحفہ میں دیے، وہ انہوں نے زمرد سے خریدے تھے۔ زمرد آئی ہے کپڑے لے کر، دیکھ لو، تمہیں کوئی پسند آتا ہے تو۔
आपने मुझे मुखातिब किया। जुमर्द जल्दी जल्दी मुझे कपड़े दिखाने लगी। आपा ने मुझे मुखातिब किया। जुमर्द जल्दी जल्दी मुझे कपड़े दिखाने लगी। साथ ही आपा से बातें भी किए जा रही थी। वो बहुत अरसे से आपा के यहाँ आती जाती थी। आपा को उसके घरेलू हालात का पूरी तरह अंदाजा था। आपा की ही जुबानी मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसका शौहर एक हादसे में माजूर हो गया था। 5 बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी उस तनहा पर थी। कम उम्री में शादी की वजह से वो 32-33 साल की उम्र में 5 बच्चों की मां बन चुकी थी। बल्कि उसकी बड़ी बेटी भी अब 14-15 साल की हो चुकी थी और जुमर्द को उसका निकलता कद परेशान कर रहा था। अब भी वो आपा के पूछने पर अपनी उसी बेटी के मुतालिक बता रही थी। ना बीबी जी, अब उसे साथ ले लेकर घर घर नहीं फिरती। मेरे हिस्से का एक गट्ठर ही अपने सर पर रखती थी। मुझे दोनों गट्ठर उठाना इतना मुश्किल नहीं लगता था जितना उसे लोगों की नजरों से बचाना मुश्किल लगता था। इसलिए उसे घर ही छोड़ आती हूँ। वो मेरे पीछे पूरा घर देखती है। कढ़ाई भी ज्यादा वही करती हैं। अब उसके ब्याह के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही किसी ने बिरादरी में रिश्ता डाला उसको रुखसत कर दूंगी। जुमर्द मेरे सामने कपड़े फैलाते हुए आपा से ये बातें कह रही थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया जुमर्द, इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करोगी? अभी उसकी उम्र ही क्या है, बांस जितना कद निकाल लिया है, मगर है तो छोटी ना। शादी के काबिल लगती है तुम्हें कहीं से? आपा ने उसे लताड़ा था। बीबी साहिबा, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं भी ऐसी ही थी। जुमर्द जब हंसी तो उसके मोतियों जैसे दांत चमकने लगे। उसका सरापा भी निहायत मुनासिब और दिलकश था। हाँ, चेहरे की रंगत थोड़ी सांवली हो गई थी, मगर अंदाजा लगाना मुश्किल ना था कि वो किसी जमाने में बहुत खूबसूरत होगी। मैं तो खैर ये सोच रही थी कि उसने दुनिया के डर से बेटी को घर बिठा दिया था, मगर खुद को दुनिया की निगाहों से कैसे छुपाती होगी। आपा अब भी उसे इसी मौजू पर लगी हुई थी। वो इसको समझा रही थी कम उम्र की शादी में वो जल्दबाजी से काम ना ले। बीबी साहिबा, हमारी औरत देखने में नर्मो नाजुक लगती है, मगर अंदर से खूब सख्त जान होती है। हम मजदूर लोग हैं जी, बच्चे पैदा करके पाल पोस भी लेते हैं और मेहनत मजदूरी भी कर लेते हैं। मजबूरी है बीबी, कौन सा सूट ले रही हो आप? उसने गोया आपा के साथ बहस समेटते हुए अपनी दुकानदारी का आगाज किया। मैं इतनी देर में लाइट पर्पल कलर का एक सूट सिलेक्ट कर चुकी थी, जिसके गले और दामन पर बहुत नफीस बेल कड़ी हुई थी। मैंने सूट की तरफ इशारा करके उसको आगाह किया था। बस एक सूट। वो कदरे मायूस होकर बोली, हाँ फिलहाल मुझे यही पसंद आया है। बाकी जिन रंगों के कपड़े हैं उससे मिलते जुलते पहले ही बहुत है मेरे पास। मैंने बहाना बनाया था। सच तो ये था मुझे 1-2 सूट और भी पसंद आए थे, लेकिन मैं जानती थी मैं जितनी मर्जी सूट पसंद करूं आपा ने मुझसे पैसे नहीं लेने, और अगर मैं 2-3 सूट खरीदूंगी तो अम्मी बहुत नाराज होंगी। सो मैंने एक ही सूट लेने पर इत्तेफाक किया। आपा अब इससे भाव ताव करने लगी। 1500 से 1 पैसा कम नहीं लूंगी जी, जुमर्द ने जैसे पेशगी आगाह किया। मुझे ये बड़ी ही जायज और माकूल कीमत लगी थी। बाजार में ऐसा सूट 2500 से कम तो हरगिज ना मिलता, और अगर कोई बड़ी दुकान हो तो 3000 कीमत लगाते। मेरा ख्याल था आपा झट से उसको पैसे पकड़ा देंगी, मगर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब आपा ने नफी में सर हिलाया। मैं तो उसका 1000 दूंगी सिर्फ, और वो भी तुम्हारा ख्याल करके, वरना परसों तुम्हारे ही इलाके से एक औरत कपड़े बेचने आई थी और 900 पर मान भी गई थी। बस कलर पसंद नहीं आया मुझे, सो नहीं लिया मैंने। आपा ने शायद नहीं बल्कि यकीनन झूठ ही बोला था। बीबी साहिबा, आप काम तो देखें इसका, कितना बारीक और सफाई से किया हुआ है। जुमर्द ने कपड़ा आपा की निगाहों के सामने फैलाते हुए कहा। हाँ हाँ देख रही हूँ, बिल्कुल बारीक सी बेल है, और कपड़ा तो देखो कितना हल्का है। इसके 1000 रुपए ही बनते हैं। आपा अपने मौकिफ से बिल्कुल ना हटी थी। कुछ तो जायज कीमत लगाओ बीबी, मैं तो आपको बिल्कुल अपनी बहन समझकर कपड़ा बेचने आती हूँ, और दूसरी औरतों की तरह मुंह फाड़कर ज्यादा कीमत भी नहीं मांगती। यकीन करो बीबी, मैंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल जायज मुआवजा मांगा है। जुमर्द लजाजत पर उतर आई। बस 1100 दूंगी, आपा ने जैसे एहसान किया। बीबी साहिबा, कुछ तो और दो, सुबह से फिरते फिरते ये वक्त हो गया है। सिर्फ 1 सूट बिका है मेरा, फिर मेरा महीने बाद ही चक्कर लगेगा। इतने पैसे तो किराया में ही उठ जाते हैं। आपको तो मालूम है कितनी वैगने बदल बदल कर धक्के खाकर यहाँ तक आना पड़ता है, फिर सुबह से शाम तक आपके शहर की गलियों में फिरते हुए बुरा हाल हो जाता है। मैंने घर में महीने का राशन डलवाना है जी।
उसने दुपट्टे से चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए आपा को मुखातिब किया। भाई जुमर, ये तुम नाइंसाफी कर रही हो। पूरे महीने का राशन तुमने मेरे ही पैसों का डलवाना है। 1100 बिल्कुल ठीक कीमत लगाई है मैंने। तुमने देना है तो दो, वरना कोई बात नहीं। कपड़े बहुत हैं हमारे पास। आपा ने बेरुखी से उसका दिखाया हुआ सूट परे किया। मैं बगौर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा ले रही थी। उसके चेहरे पर मायूसी के साए लहराने लगे थे। मुझे उस पर तरस आने लगा और मुझे ये भी पता था कि आपा भाव ताव करने की माहिर हैं। हमारे घर में भी खरीदारी का काम तब ही निपटाया जाता था जब आपा घर आती थी। वो बहुत मुनासिब कीमतों पर भी दुकानदार से भाव ताव करके वो चीजें भी खरीद लाती थी जो अगर मैं या अम्मी खरीदने जाते तो दुकानदार कम नरखों पर बेचने के बजाय टका सा इनकार कर देते। हम आपा को इसलिए ही खरीदारी का माहिर कहते थे। कीमत कम करवाने में उनका कोई सानी नहीं था। लेकिन आज पहली दफा मुझे आपा की भाव ताव की आदत से कोफ्त हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था फटाफट इस मेहनत कश औरत की हथेली पर उसका मुआवजा रख दूं। भले से वो कुछ फालतू ही मांग रही हो, मगर आपा उसके चेहरे पर फैलती मायूसी को हरगिज खातिर में नहीं ला रही थी। वो अपनी बताई हुई कीमत पर अड़ गई थी। अच्छा 1200 दे देना, जुमर ने गोया थक हार कर कहा। बस 1150। चलो सूट के साथ का दुपट्टा दे दो। जुमर ने दुपट्टे और शलवार का कपड़ा भी चुपचाप थमा दिया। आपा ने बटवा खोलकर 1000 के नोट के साथ 100 के 2 नोट जुमर को दे दिए और साथ ही जता भी दिया 50 का खुला नहीं है, 50 लौटा दो। जुमर ने चुपचाप दुपट्टे के पल्लू से मुड़ा तुड़ा 50 का नोट निकाल कर आपा को थमा दिया और बाकी के पैसे उसने गरीबान से बटवा निकाल कर एहतियात से रखे थे। आइंदा आना तो फ्रेश रंगों के कपड़े लाना। इस बार तो रंग फीके फीके ही थे। जी बीबी, 15-20 दिन बाद आऊंगी तो आप और बाजी के 2-3 सूट जरूर लाऊंगी। वो अपनी घटड़ी बांधती मायूसी को पीछे धकेलती नई उम्मीद का सिरा पकड़कर उठ खड़ी हुई। मैं हैरत से उसको देख रही थी। कितनी आसानी से उसने 2 वजनी गट्ठड़ अपने सर पर रखे और फिर मुझे और आपा को सलाम करते हुए मतवाजन कदमों से चलती हाथों से गट्ठड़ संभालती बाहर निकल गई। आपा, आपने ज्यादती की बेचारी जुमर के साथ। 1500 कोई ज्यादा तो नहीं थे इस सूट के। उसके जाते ही मैंने आपा को एहसास दिलाना चाहा। अरे अगर इसको कम लगते तो 1150 में कभी सूट ना बेचती। कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर उसके पास गया है, वरना इतनी भी सीधी नहीं है जितनी शक्ल से लगती है। कुछ ना कुछ मुनाफा तो जरूर उसके पास गया है आपा, मगर वो गरीब और जरूरतमंद औरत है। उसको कुछ ज्यादा फायदा हो भी जाता तो क्या हर्ज था, मैंने होले से कहा। जुमर की उदास सूरत अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। जी बन्नो, जब तुम घर बाहर वाली होगी तब तुम्हें पैसों की कदर कीमत का अंदाजा होगा। अपने शोहर की खून पसीने की कमाई का एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करना होता है। अब ये ना सोचने बैठ जाना कि तुम्हें ये सूट दिलवाया है इसलिए कह रही हूँ। मैं तुम्हें घर गृहस्थी का असूल बता रही हूँ जो आइंदा आने वाली जिंदगी में तुम्हारे काम आएगा। हूर आपा ने मुझे प्यार से समझाया। मैंने भी मुस्कुरा कर इस बात में सर हिला दिया। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और साथ ही किसी फकीर ने सदा लगाई। जुमेरात वाला बाबा होगा। जुमेरात की जुमेरात आता है, आपा ने मुझे बताया। खुले पैसे तो नहीं है आपके पास, मैं दूं? मैंने पास पड़ा अपना हैंड बैग उठाते हुए कहा। अरे नहीं, तू कर, ये 50 रुपए ही उसे दे आओ। हर जुमेरात बच्चों के नाम का 150 सदका करती हूँ। आपा ने अपनी मुट्ठी में दबा हुआ मुड़ा तुड़ा मैला कुचैला सा नोट निकाल कर मुझे दिया, जो जरा देर पहले जुमर देकर गई थी। मैंने उनके हाथ से नोट लिया। दरवाजे पर जाकर जरा सा खोल कर देखा। हट्टा कट्टा फकीर बाबा अपना कशकोल फैलाए मुंतजिर खड़ा था। मैंने नोट उसके कशकोल के हवाले कर दिया और दरवाजा बंद करके वापस पलट आई। हूर आपा फ्लोर कुशन समेट रही थी। मैंने राह ली जहाँ चूल्हे पर धरी हंडिया मेरी मुंतजिर थी और साथ साथ में ये भी सोच रही थी जो इतनी मेहनत और मजदूरी करके कमाते हैं, क्या हमें उनका हक रखना चाहिए? और जो इतने हट्टे कट्टे होकर मांगते हैं, क्या हमें उनको देना चाहिए?